الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا عمل اور وظیفہ ہے یہ اس تسبیحات کا ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیان کی، ایک تحفہ دیا. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیان کروں گا کہ یہ کس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل عطا کیا اور اس کی کیا فضیلت ہے. خاتون جنت سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کام خود ہی کیا کرتی تھی. میرے عزیزو، یہ دیکھیے، اگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ فرماتے تو جنت کی چیزیں ان کے گھر میں آ جاتی. لیکن ابو داؤد میں یہ روایت ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چکی پیستی تو ان کے ہاتھوں کو کافی نقصان ہوا. آج کے دور میں تو شاید بہت سارے لوگوں کو چکی کا صحیح معنوں میں علم ہی نہیں ہے کہ چکی چلانے میں کتنی محنت ہوتی تھی اور کتنی طاقت لگتی تھی، اور بعض اوقات چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں چھالے بھی پڑ جاتے تھے. تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں چکی چلاتی اور گھر کے کام کرتے، گھر میں جھاڑو دیتے اور کنویں سے پانی بھی کھینچتی تھی. تو بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ کو پتہ چلا کہ سید کونین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند غلام آئے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ خود ہی گئیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اپنے بابا کے پاس سے ایک غلام لے آؤ. حضرت فاطمہ آقا کریم کے پاس حاضر ہوئی، لیکن وہاں پر آدمی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے کوئی بات نہیں کی اور آپ گھر چلے گئے آقا کریم کے اور اماں عائشہ کے پاس گئے اور کہا آپ نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سارے غلام اور لونڈیاں آئی ہوئی ہیں، تو میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ آقا کریم کوئی لونڈی مجھے بھی عطا کر دے، کوئی غلام دے دیں کہ وہ باہر کے کام کاج کرے اور لونڈی گھر کے کام کاج کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر آئے اور انہیں پتا چلا تو آپ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے. رات کا کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن ہمارے آقا کریم کو اپنی بیٹی کے ساتھ محبت ہی اتنی تھی کہ آپ رات کو ہی چلے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہم اپنی چار پہیوں پر لیٹے ہوئے تھے، آقا کریم آ گئے، ہم کھڑے ہونے لگے تو آقا کریم نے فرمایا نہیں، لیٹے رہو. تو میرے آقا کریم نے پوچھا اپنی بیٹی سے کیوں آئی تھی؟ تو کہنے لگی ابا جی، کام کاج کر کر کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اور ظاہری سی بات ہے یہ بہت مشقت طلب کام ہوتے ہیں. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹی، آپ سے پہلے تو بدر کے یتیم آ گئے تھے، یعنی جو جنگ بدر میں شہید ہوئے تھے ان کے بچے آ گئے تھے، وہ مال تو سارے کا سارا میں نے انہیں عطا کر دیا. میرے عزیز بھائیوں، اس میں بہت سارے سبق بھی ہیں ہم مسلمانوں کے لیے کہ اسلام نے ہمیں کیا سکھلایا ہے. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو درجات ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. جنت کی عورتوں کی سردار، امام الانبیاء کی بیٹی بھی ہے، اور حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان بھی ہے، اور حضرت مولا شیر خدا کے نکاح میں بھی ہے. یہ ساری شانیں صرف ان کے لیے ہیں.
लेकिन देखिए कि मेरे आका करीम ने बदर के यतीमों को वो माल अता कर दिया। ये इस्लाम की खूबसूरती है कि मेरे आका करीम ने हमें बताया कि लोगों के लिए इसार कैसे करते हैं, कुर्बानियां कैसे देते हैं। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी अब तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक वजीफा बताता हूँ। और मेरे आका करीम ने फिर फरमाया कि सोने से पहले 33 बार 33 टाइम सुभान अल्लाह और 33 बार ही अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। और इसी को तस्बीह फातिमा भी कहा जाता है। और हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब से हजूर ने ये वजीफा हजरत सैयदा को बताया तो अली ने इस वजीफे को सोने से पहले कभी नहीं छोड़ा। यानी इस वजीफे में पावर, ताकत मुराद है। और हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि जिंदगी में सिर्फ एक बार मैं पहले वक्त नहीं पढ़ सका। जंग सफीन में जंग लड़ते लड़ते रात का आखिरी पहर हो गया और मैं ये तस्बीहात नहीं पढ़ सका। और आखिरी वक्त में मुझे याद आया, उस वक्त मैंने ये तस्बीह फातिमा पढ़ी। तो मेरे अजीज भाइयों, इसको हमने किस तरह पढ़ना है, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही फरमाया है कि जब तुम बिस्तर पर लेट जाओ सोने के लिए तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ो। यही तस्बीहात पढ़ने का हुक्म हर नमाज के बाद भी है। और रात को सोने के लिए जब लेट जाए तो उस वक्त भी पढ़ लिया करें। और इसकी ये बहुत बड़ी फजीलत है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद और अपनी बेटी को ये तस्बीहात बताई और फजीलत ये बताई कि ये घर में खादम होने से बहुत बेहतर है। यानी खादम होने से वो कुछ हासिल नहीं होगा जो तुम्हें इन तस्बीहात पढ़ने से हासिल होगा। और इसका अजर क़यामत में वो मिलेगा, उस अजर को देखकर तुम ये कहोगे कि हमने तो दुनिया मुसीबतों में गुजार दी। मुसीबतों से मुराद यहाँ पे ये है कि मुशक्कतों में गुजारी। और जो अजर हमें मिल रहा है ये उस खादम से करोड़ों गुना ज्यादा है और बेहतर है। मेरे अजीज भाइयों, इसका दुनिया में भी फायदा है और आखिरत में भी फायदा है। इस तस्बीहात को पढ़ने वाले की, इस तस्बीहात का जिक्र करने वाले के जिस्म में कुव्वत और ताकत भी होती है। और क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका बेहतरीन अजर भी अता करेगा। बुखारी मुस्लिम में एक हदीस है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ गरीब लोग हाजिर हुए। बुखारी मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। उनके अल्फाज कितने शानदार हैं। मदीने के गरीब आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अमीर लोग तो हमसे नेकियों में आगे निकल गए। गरीबों ने आकर रोना रोया, पर नेकियों का, अपनी गुर्बत का नहीं, कि या रसूल अल्लाह ये अमीर लोग तो हमसे आगे निकल गए। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या हुआ? तो वो कहने लगे, ये अमीर लोग फतरा ना देते हैं, हम दे नहीं सकते। ये ज़कात देते हैं, हम दे नहीं सकते। ये हज करते हैं, हम हज नहीं कर सकते। ये सदकात करते, हम नहीं करते। ये तो हमसे आगे निकल गए। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन गरीबों को अपने करीब बुलाया। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं, हजरत अबू हुरैरा के, हजूर ने फरमाया कि चेहरे मेरे करीब करो, जैसे चंद दोस्त बेतकल्लफ सर जोड़ के कोई बात करते हैं। इसी तरह उन्होंने अपने सर हमारे आका करीम के मुबारक सर से जोड़ लिए। तो मेरे आका करीम फरमाने लगे, मैं तुम्हें एक वजीफा बताता हूँ। अमीर जितनी भी नेकियां करेंगे तुम अमीरों से आगे ही रहोगे। तो कहने लगे, या रसूल अल्लाह वो क्या? तो मेरे आका करीम ने फरमाया, जब सोने लगो 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ो, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ो
ये पढ़ के तुमने सोना है, अमीर जितने मर्जी सदकात और खैरात करते रहें, पर तुम उनसे आगे निकल जाओगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन गरीबों के चेहरों पर इतनी खुशी थी कि जैसे उनके हाथों में बहुत बड़ी जायदादें आ गई हों। मेरे आका करीम ने जब उन्हें वजीफा बताया, वो बड़े खुशी से वापस गए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि 1-2 हफ्ते के बाद वो फिर वापस आ गए, इकट्ठे हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, एक मसला बन गया है। तो मेरे आका करीम ने फरमाया, वो क्या? तो कहने लगे, हुजूर, वो जो बात आपने हमें बयान की थी, बताई थी, वो तो लीक हो गई, वो तो अमीरों ने भी सुन ली है। तो हुजूर, अब वो सदकात खैरात सारा कुछ करते हैं। अब उन्होंने ये वजीफा भी पढ़ना शुरू कर दिया है। तो एक सहाबी उनमें कहने लगे, हुजूर, मेरा पड़ोसी बहुत अमीर है, बड़ा खाता पीता आदमी है, और रात को मैंने उसे भी देखा, वो कह रहा था कि मुझे भी पता चल गया, मैं भी रोजाना 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ के सोता हूं। तो वो कहने लगा, सहाबी, या रसूल अल्लाह, अब हम क्या करें? वो सदका भी दे रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, फितराने भी दे रहे हैं, और ये वजीफा भी पढ़ रहे हैं, अब हम क्या करें? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया, अभी अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि ये तो अल्लाह का फजल है, वो जिसको चाहता है अता फरमाता है, अब इसमें तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए कि उन्होंने सुन लिया और वो पढ़ने लगे हैं। तो अब ये अल्लाह का फजल है, इसमें क्या किया जा सकता है? मेरे अजीज भाइयों, सहाबा कराम में एक ज़ौक था, एक शौक था कि कोई नेकियों में हमसे आगे ना बढ़ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको ये ज़ौक और ये शौक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सदका जारिया समझकर। आपके एक शेयर करने से जो ये तस्बीहात पढ़ेगा, उसका अजर, उसका सवाब आपको, मुझे, हम सबको मिलेगा। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वजीफे अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।